Hello everyone, hope you all are doing really well. This is Mansi Chaudhary and welcome to my channel The Commerce Junction. Today we are going to discuss some basic terms that are frequently used in accounting. I was about to shoot some other topic, but then I realized what is the fun of starting any advanced accounting topic if you all are not able to understand the meaning of it. So I'm starting with the accounting terminology where we will learn the meaning of some basic terms that are frequently used in accounting. Let's get started. Since we are discussing some basic terms of accounting, let us first understand what exactly accounting is. As per the definition written over here, accounting is a systematic process of identifying and measuring, recording, classifying, summarizing and communicating financial information. Let us first discuss what is financial information. Financial information means वो सारी transactions, वो सारे events जिसको आप financial terms में express कर सकते हो. That means that have some monetary value, जिसको आप money की form में express कर सकते हो. Let us say आप किसी employee को hire करते हो and that employee works for 9 hours a day. And you are paying him 10,000 per month salary. अब वो एम्प्लॉय कितने घंटे काम करता है, कितनी मेहनत से काम करता है, दैट इज़ ऑफ नो यूज़ इन अकाउंटिंग. अकाउंटिंग में क्या ज़रूरी है कि आपको वो काम करवाने के लिए क्या पे करना पड़ रहा है. इफ़ दैट हैज़ सम मॉनेटरी वैल्यू सो दैट विल बी यूज इन अकाउंटिंग, राइट. सो दिस इज़ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. अब उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का करना क्या है, यू नीड टू आइडेंटिफाई इट. दैट मीन्स आपको पहले देखना पड़ेगा कि वेदर अ टर्म, वेदर अ ट्रांजेक्शन इज इन्वॉल्विंग एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और नॉट, राइट. देन यू नीड टू मेजर इट. व्हाट अमाउंट इज इन्वॉल्व इन अ ट्रांजेक्शन. आफ्टर आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग यू नीड टू रिकॉर्ड दैट ट्रांजेक्शन एंड दिस स्टेप इज डन इन journal. In journal, we record each sort of transaction that have monetary value. The basic order is according to the date. You need in synchronization order, but we don't put it into separate head. We record all the transaction. Like there is no distinction between credit transaction, between cash transaction or any other sort of transaction. Then अब मैंने सारी transactions यहाँ record कर ली. मुझे पता करना है कि मेरे बिजनेस में कितना कैश इन्वॉल्व है, कितनी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो क्रेडिट बेसिस पे जा रही हैं, मिस्टर ए से कितने पैसे लेने हैं, मिस्टर बी को कितने पैसे देने हैं. सो ये सब मुझे कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन. एंड दिस स्टेप इज डन इन लेजर. डन. आफ्टर यू क्लासीफाई योर ट्रांजेक्शन. अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन, ये थ्रू आउट द ईयर काम करते हैं. आपको थ्रू आउट द ईयर आप ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हो, रिकॉर्ड करते हो, उनको क्लासीफाई करते रहते हो एज पर द सेपरेट हेड्स. बट इफ द ओनर वांट्स टू नो एट अ पर्टिकुलर डेट कि उसका बिजनेस कैसे वर्क कर रहा है, उसके बिजनेस की क्या पोजीशन है, तो वो पूरा जर्नल या लेजर देखने नहीं बैठेगा, पूरे रजिस्टर देखने नहीं बैठेगा. उसको क्या चाहिए, एक समराइज फॉर्म चाहिए. फॉर एग्जाम्पल हम पूरा साल पढ़ते हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पूरे साल होती रहती है, बट एग्ज़ाम्स के बाद जब आपको रिपोर्ट कार्ड इशू किया जाता है, वो एक समराइज फॉर्म में इशू किया जाता है. दैट इज़ अ समरी ऑफ व्हाट यू हैव डन थ्रू आउट द ईयर और थ्रू आउट द सेमेस्टर. सो दिस इज व्हाट वी डू इन अकाउंटिंग. Accounting behavior summarization means preparing a report card for your business. So in this step we prepare trial balance, trading and profit and loss account and balance sheet. So these 3 statements give you an overall view of your accounting year, of your business, that what your business has done in a particular year and what growth it has made. Then you have prepared the summarized form, then you need to communicate it to higher authorities. So this is the basic meaning of accounting as per the definition. But in general if you want to know in one line, so accounting का मतलब क्या है, maintenance of accounts. Since
we have talked much of accounts that we do in classification. So let us discuss what exactly account is. Account क्या है? It is a separate record for each head. Each head का मतलब क्या है कि आप एक पर्टिकुलर हेड से रिकॉर्डेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स अगर एक जगह आपको देखनी है तो वो आपको कहाँ मिलेगा? आपको एक पर्टिकुलर अकाउंट में मिलेगा. आपको मिस्टर ए से कितने पैसे लेने हैं वो आपको मिस्टर ए के अकाउंट से पता चलेगा. आपको मिस्टर बी को कितने पैसे पे ऑफ करने हैं वो मिस्टर बी के अकाउंट से पता चलेगा. आपको ये पता करना है कि आपके बिजनेस में कितना कैश इन्वॉल्व है तो वो आपको कैश अकाउंट से पता चलेगा. सो अकाउंटिंग का मतलब क्या है? इट इज़ अ सेपरेट रिकॉर्ड फॉर ईच हेड जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो. अगर प्रिपरेशन की बात करें तो इट इज़ प्रिपेयर्ड इन टी फॉर्मेट फॉर एनी अकाउंट having two sides. Left hand side is known as debit side and right hand side is called credit side. The format is like you have three columns over here: date, particulars and amount. For debit as well, for credit as well. Date, particulars and amount. When we go to proper ledger format, then इसमें एक दो कॉलम्स और ऐड हो जाते हैं. यहाँ पे जर्नल फोलियो भी आ जाते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी का कॉलम भी आ जाता है, बट दैट इज़ अ सेपरेट पॉइंट. अकाउंट का अगर बेसिक मीनिंग आप पढ़ रहे हो तो इसमें क्या है? एक सेपरेट रिकॉर्ड है ईच हेड का और फॉर्म इसको किया जाता है टी फॉर्मेट में, हैविंग टू साइड्स डेबिट एंड क्रेडिट. डन. नेक्स्ट टर्म दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज अकाउंटेंसी. अब आप कहोगे कि अभी हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है. यू विल से अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी आर वन एंड सेम थिंग. इट इज़ सो, बट देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दिस. अब डिफरेंस क्या है? अकाउंटिंग का मतलब क्या है? मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स. आप अकाउंट मेंटेन करते हो किसी बिजनेस के, किसी पार्टनरशिप फर्म्स के, किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के, एनी सेपरेट एंटिटी. एंड अकाउंटेंसी क्या है? जो हम लोग अभी कर रहे हैं. हम लोग जब अकाउंट्स पढ़ते हैं दैट इज़ नोन एज अकाउंटेंसी. इट इज़ अ स्टडी ऑफ अकाउंट्स. अब आप अकाउंट्स मेंटेन करते हो बिजनेस के. ओनर्स के अकाउंट नहीं मेंटेन किए जाते, बिजनेस के अकाउंट मेंटेन किए जाते. सो व्हाट एग्जैक्टली बिजनेस इज? कुछ बोलेंगे कि मैम मैन्युफैक्चरिंग एक तरह का बिजनेस है, कुछ कहेंगे नहीं मैम ट्रेडिंग एक तरह का बिजनेस है. एंड सम अदर विल से नहीं मैम जो ट्यूशन्स पढ़ाते हैं ये CAs हैं, ये अकाउंटेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल जॉब कर रहे हैं, ये एक बिजनेस है. इट इज़ सो, बट क्वेश्चन वही है कि आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी, एक पर्टिकुलर टास्क, एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन बिजनेस है या नहीं है. सो उसके लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक मीनिंग ऑफ बिजनेस. बिजनेस का मतलब क्या है? एनी वर्क, एनी टास्क परफॉर्म विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ जाता है कि मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्निंग. दिस शुड बी योर बेसिक मोटिव कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है. एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप फर्नीचर परचेज करते हो. फॉर एग्जाम्पल 10,000 वर्थ का फर्नीचर परचेज किया एंड आपका मोटिव है इसको 12,000 और 13,000 में मुझे सेल ऑफ करना है सो दैट आई गेट समथिंग आउट ऑफ इट. दिस इज़ बिजनेस. आप कुछ अर्न करने का सोच रहे हो. इसमें हो सकता है प्रॉफिट हो सकता है लॉस हो, बट वो बात की बात है. आपका मोटिव क्या है कि आपने इसमें से प्रॉफिट अर्न करना है. सो दिस इज़ बिजनेस. आप अपने फ्रेंड को गिफ्ट देते हो, वो बिजनेस है? नो. वाई? बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट. यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिटर्न आउट ऑफ इट. सो दैट इज़ नॉट बिजनेस. बिजनेस क्या है कि कोई भी ऐसा टास्क जिसमें आपका मोटिव है कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है वो बिजनेस बोला जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन. अब बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है? हमने अकाउंटिंग में पढ़ा कि आप रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालिसिस करते हो. किसका करते हो? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का. बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का करते हो. अब वहाँ पे फाइनेंशियल का मतलब तो समझ आ गया कि जिसका मॉनेटरी वैल्यू है, जिसको आप मनी में एक्सप्रेस कर सकते हो. बट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है? सो ट्रांजेक्शन मीन्स जब किसी एक्टिविटी में कोई ट्रांसफ़र इन्वॉल्व होता है.
व्हेन देयर इज सम ट्रांसफर ओवर देयर, कोई लेन देन हो रहा है, किसका ट्रांसफर हो रहा है? ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैश और एनी बेनिफिट। आप किसी भी गुड, सर्विसेज, कैश और किसी बेनिफिट को ट्रांसफर कर रहे हो। आप गुड्स बेच सकते हो, सर्विसेज रेंडर कर सकते हो विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, आप कैश पे और कैश रिसीव कर सकते हो, आप कोई बेनिफिट दे सकते हो, दैट मीन्स आप किसी के लिए काम कर सकते हो, कोई आपके लिए काम कर सकता है, बट देयर इज़ अ ट्रांसफ़र। और ये ट्रांसफ़र किसके बीच में होना चाहिए? बिटवीन बिजनेस एंड outsider. Very important point to be noted over here, that there should be a transfer and that transfer should be between business and outsider. We can take the example, let's say एक कंपनी है ABC लिमिटेड, उसके दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यूनिट A एंड यूनिट B। अब यूनिट A के रॉ मटेरियल यूनिट B में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, यूनिट B के रॉ मटेरियल यूनिट A में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स, बट उसको हम ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? बिकॉज उसमें पार्टीज कौन से इन्वॉल्व हैं? यूनिट ए एंड यूनिट बी। और यूनिट ए और यूनिट बी बिलोंग किसको करते हैं? बिजनेस को बिलोंग करते हैं। तो वो बिजनेस के अंदर ही ट्रांसफ़र हो रहा है, किसी आउटसाइडर के साथ नहीं हो रहा। यू आर नॉट गोइंग टू अर्न आउट ऑफ इट। यूनिट ए में भी सेम ओनर के पैसे लगे हैं और यूनिट बी में भी सेम ओनर के पैसे लगे हैं, तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ रिटर्न आउट ऑफ इट। So that is no business and that will not be a business transaction. So what is important over here, that there must be a transfer or transfer किसके बीच में होना चाहिए? Between the business and the outsider. I hope it is clear to you all. अब हमने यहाँ पे पढ़ा that there must be a transfer of goods. Goods क्या होते हैं? यही पढ़ते हैं नेक्स्ट। अकाउंटिंग में गुड्स पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। क्यों आ जाता है? बिकॉज स्टूडेंट की अक्सर यही क्वेरी होती है कि मैम गुड्स का तो अकाउंट ही नहीं होता कोई, तो क्या होता है गुड्स? आप कहोगे गुड्स मतलब सामान। कॉमनली गुड्स में हर तरह की प्रॉपर्टी इंक्लूड होती है, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, क्लोथ्स, शूज़ एक्सेट्रा, एंड द लिस्ट गोज ऑन। बट इन अकाउंटिंग इसका मीनिंग थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। इन विच बिजनेस डील्स, अकाउंटिंग में गुड्स का मतलब सिर्फ वही आर्टिकल्स होते हैं जिसमें आप डील कर रहे हो, जिसकी सेल और परचेज कर रहे हो, जिसके ट्रांजैक्शंस हो रही हैं बार बार, जिसके ट्रांसफ़र के लिए आप काम कर रहे हो, दैट आर गुड्स। क्लियर? अब गुड्स से तीन और अकाउंट डिराइव किए जाते हैं, परचेजेस, सेल्स एंड स्टॉक। परचेजेस का मतलब नॉर्मली खरीदना, बट अकाउंटिंग में क्या होता है कि आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है। अब आप गुड्स भी खरीद सकते हो, आप एसेट्स भी खरीद सकते हो, है तो दोनों खरीदना ही, बट अकाउंटिंग में परचेजेस अकाउंट में सिर्फ गुड्स की परचेजेस आती हैं। तो ऑन द केसेस विद द सेल्स एज वेल, कि आप बेचने को गुड्स भी बेच सकते हो, आप अपनी प्रॉपर्टी बेच सकते हो, आप अपने एसेट्स बेच सकते हो। बट अगेन अकाउंटिंग में जब आप गुड्स को बेचते हो वहाँ से जो पैसे आते हैं या सर्विसेज को रेंडर करने से जो पैसे आते हैं, दैट इज सेल्स। डन। नेक्स्ट इज स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या है? क्या फ्यूचर के लिए कुछ बचा के रख रहे हो। अकाउंटिंग में स्टॉक का मतलब क्या है? दीज आर दी अनसोल्ड गुड्स। अब अगर मैं एग्जांपल लूँ कि आप जब स्टॉक मेंटेन करके रखते हो तो आप ये नहीं कहोगे ना कि मेरे पास एक घर है, मैं 2 घर और रख लेती हूँ स्टॉक के लिए। नहीं, मेरे पास एक कार है, मैं 3 कार और रख लेती हूँ स्टॉक के लिए। नहीं, मेरे पास एक लैपटॉप है, मैं 2 लैपटॉप्स और रख लेती हूँ स्टॉक के लिए कि मुझे फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी। नो, वी ऑल डोंट डू दैट। बट हम स्टॉक में क्या रखते हैं? मेरे पास 2 पेन है, 3-4 पेन और ले आती हूँ, 2 कॉपीज़ हैं, 2-3 कॉपीज़ और ले आते हैं। तो हम जब स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं, हम टू बी यूज आर्टिकल्स का स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं। यहाँ पे टू बी यूज आर्टिकल्स कौन से हैं? गुड्स, बिकॉज आप उनमें डील कर रहे हो, तो आप गुड्स का स्टॉक मेंटेन करके रखोगे। खुद मेंटेन नहीं करते, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। कैसे क्रिएट होता है कि जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जो भी परचेजेस कर रहे हो और उसमें से जितने गुड्स बिक गए,
बाकी जो रह गया वो आपका स्टॉक बन जाएगा। अगर स्टार के एंड पे बना रहे हो तो क्लोजिंग स्टॉक, नेक्स्ट ईयर उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे तो वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। डन। अब स्टॉक क्या होता है? स्टॉक एक्चुअली आपका एसेट होता है। आपको फिर कंफ्यूज कर दिया। अभी हम बात कर रहे हैं गुड्स की और आ गया एसेट। तो एसेट का मीनिंग पढ़ते हैं अब क्या है। मैं जब भी किसी स्टूडेंट से पूछती हूँ ना दैट व्हाट आर एसेट्स, हर कोई मुझे हमेशा एग्जाम्पल्स देनी स्टार्ट कर देता है कि मैम प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग एक एसेट है, इक्विपमेंट्स आर एसेट, स्टॉक एक तरह का एसेट है, डेटर्स हमारे एसेट्स है, कैश हमारा एसेट है। बट क्वेश्चन वही का वही है, एसेट क्या है? आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि एक पर्टिकुलर आर्टिकल आपका एसेट है? लिटरल मीनिंग क्या है? एसेट क्या मतलब क्या है? व्हाट वी ओन। यहाँ पे वी का मतलब ध्यान से पढ़ना, वी का मतलब है बिजनेस। आप जिसके लिए अकाउंट्स बना रहे हो, अकाउंटेंट का कोई रोल नहीं है, ओनर का कोई रोल नहीं है, वी का मतलब है बिजनेस। तो आप जिसके लिए अकाउंट्स बना रहे हो वो बिजनेस क्या ओन करता है, जिसके ऊपर उसका कोई राइट है, दैट इज एन एसेट। ठीक है, आपके पास लैंड के पेपर्स हैं, आपका नाम लिखा हुआ है, यू हैव राइट ओवर इट, यू ओन इट, दैट इज योर एसेट। अब आप कहोगे कि मैम गुड्स भी तो एसेट्स हैं बिकॉज हमारे गुड्स हैं। डिफरेंस कहाँ आता है? एक फ्रेज यूज़ किया जाता है, ऑल द गुड्स आर एसेट्स बट ऑल एसेट्स माइट नॉट बी गुड्स। क्या मतलब है इसका? एक एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। आप किसी शोरूम में जाओगे, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर का शोरूम है। अब आप वहाँ पे चेयर परचेज करने गए हो, आप ओनर को ये ना बोलोगे कि जिस चेयर पे वो खुद बैठा हुआ है वही चेयर चाहिए मुझे, राइट? आप चेयर परचेज करने जा रहे हो बट आप ओनर की चेयर नहीं परचेज कर सकते हो। क्यों नहीं परचेज कर सकते हो? क्योंकि उसका राइट है उसके ऊपर, उसकी प्रॉपर्टी है वो। गुड्स क्या है? वो आइटम्स विच आर मेंट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, जो आप परचेज करते हो किस पर्पज़ के लिए? रीसेल करने के पर्पज़ से। बट एसेट्स क्या हैं? वो आइटम्स जो आप खुद यूज़ करने के पर्पज़ से परचेज करते हो। आप लैंड परचेज करते हो, आप बिल्डिंग परचेज करते हो खुद यूज़ करने के लिए। अगर आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है तो वो बिल्डिंग आपके लिए गुड्स हो जाएगा बिकॉज आप उसको सेल और परचेज कर रहे हो, राइट? तो एसेट का मतलब क्या है? वो आइटम्स विच यू ओन, विच यू हैव राइट ऑन, एंड वो चीज़ें जो आप खुद यूज़ करने के लिए उसको परचेज कर रहे हो, राइट? अकाउंटिंग की और डिटेल में पढ़े तो एसेट का मतलब क्या है? वो कॉस्ट और एक्सपेंस, वो कॉस्ट और वो एक्सपेंस जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा। राइट? तो कोई भी ऐसा खर्चा जो आपको इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर कुछ बेनिफिट देगा, दैट इज़ योर एसेट, राइट? आप लैंड परचेज करते हो तो ये नहीं ना है कि उसी अकाउंटिंग ईयर में वो लैंड का जो भी बेनिफिट है वो डिराइव हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। नो, उसका बेनिफिट काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। ये तो आगे ना कि आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स हो गए। शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, आप अनसोल्ड स्टॉक मेंटेन करके रखते हो, वो मैंने बताया कि वो हमारा एसेट है। तो उसका बेनिफिट क्या है हमें कि हम नेक्स्ट ईयर उसको सेल ऑफ कर देंगे, वहाँ से पैसे आएंगे। तो कोई भी ऐसी कॉस्ट जो आपको फ्यूचर टाइम पीरियड में बेनिफिट कर रही है, फ्यूचर में आप उसका जो बेनिफिट है वो रिसीव कर रहे हो, तो वो आपका एसेट हो जाएगा, राइट? अब अगर ये फ्यूचर पीरियड लेस देन 1 ईयर है तो वो क्या हो जाएगा? आपके करंट एसेट्स। और अगर यही फ्यूचर पीरियड मोर देन 1 ईयर है तो वो आपके फिक्स एसेट्स हो जाएंगे। क्लियर? अब एसेट्स कितनी बात की है तो लायबिलिटीज आ जाती है नेक्स्ट टर्म।
लायबिलिटी का मतलब क्या है? ये आपकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है, आपको जो पे करनी है, आप पे कर्जा है जो आपको पे करना है। अब वो आप कैश में पे कर सकते हो, आप कोई एसेट दे सकते हो, आपने किसी से काम करवाया उसको पेमेंट करनी है, या किसी से पैसे ले लिए हुए हैं उसके लिए काम करना है, वो भी ऑब्लिगेशन आ गई। तो आपको कुछ पे करना है। अब क्या पे करना है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो ये आपकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं। लिटरल मीनिंग में देखें तो इट इज व्हाट वी ओ। एसेट्स क्या थे? व्हाट वी ओन, जिसके ऊपर हमारा राइट है। लायबिलिटीज क्या है? व्हाट वी ओ, जो हमें पे करनी है, हमने अपना लायबिलिटीज जो है वो डिस्चार्ज करनी है इन द फ्यूचर। डन। नाउ we have talked much about assets and liabilities. Let us move on to the next term, that is debtors and creditors. अब debtors कौन है? जिनसे हमने पैसे लेने हैं। किस लिए पैसे लेने हैं? बिकॉज हमने उनको गुड्स बेचे हैं क्रेडिट पे। कौन आ गया यहाँ पे? आपके कस्टमर्स who owe you some money. नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स, इसके ऑपोजिट हो जाएगा, जिनको हमने पे ऑफ करना है। किस लिए पे करना है? बिकॉज हमने इनसे गुड्स परचेज किए हैं ऑन क्रेडिट। कौन आ गए इसमें? आपके सप्लायर्स, जिनसे आपने रॉ मटेरियल परचेज किया क्रेडिट पे। आप अगर ट्रेडिंग फर्म है तो आपने गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट पे जो आपने फर्दर सेल ऑफ करने हैं। सो दोज विल बी योर क्रेडिटर्स। इनको आपने पे ऑफ करना है एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाइड ओवर देयर। डन। नेक्स्ट टर्म दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब क्या है? नाम से क्लियर है, एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा। अकाउंटिंग में एक्सपेंस का मतलब क्या है? वो खर्चे जिसका बेनिफिट एक अकाउंटिंग पीरियड के बियॉन्ड नहीं जाता। ठीक है, तो एक्सपेंस का मेन लाइन क्या आ गया? बेनिफिट विद इन। वो खर्चे जिसका बेनिफिट विद इन एन अकाउंटिंग ईयर एक्सपायर हो जाता है, उसके बियॉन्ड नहीं जाता, वो आ जाते हैं आपके एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल क्या हो सकती है? आपने एम्प्लॉय हायर किया, उसको सैलरी पे कर दो, 1 महीना काम किया, सैलरी जो पे की उसका बेनिफिट ख़त्म। अगर साल के लिए पे कर रहे हो तो 1 साल उसने काम किया, आपने सैलरी पे की, 1 साल के अंदर बेनिफिट डिराइव हो गया, वो आपका एक्सपेंस आ जाएगा। आपने बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है, रेंट पे करते हो, एक्सपेंस किया, 1 साल बिल्डिंग यूज़ की, बेनिफिट डिराइव हो गया आपका। सो दीज आर योर एक्सपेंसेस। इसी से जो नेक्स्ट रिलेटेड टर्म आती है दैट इज एक्सपेंडिचर। आप कहोगे फिर से कन्फ्यूजन होगी, एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर एक ही तो चीज़ होती है। इट इज़ सो, बट देर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस इन इट। एक्सपेंडिचर एक्सपेंस से एक ब्रॉडर टर्म है, इट इंक्लूड एक्सपेंसेस। सो एक्सपेंडिचर जो हैं वो 3 तरह के होते हैं: कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब पढ़ते हैं एक एक करके। फर्स्ट वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये वो एक्सपेंडिचर हैं जो एक कैपिटल का काम करते हैं, मीन्स दीज आर योर इन्वेस्टमेंट्स इन द बिजनेस। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर जब आप करोगे तो वो आपका एसेट बन जाएगा। आप बिल्डिंग परचेज करते हो, उसके लिए जो खर्चा किया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आप लैंड परचेज करते हो, उसके लिए जो खर्चा किया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आप लैपटॉप परचेज कर रहे हो, उसके लिए जो खर्चा किया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। डन। नेक्स्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Revenue expenditure are just like your expenses. These are the expenses जिसका बेनिफिट आपको विद इन एन अकाउंटिंग ईयर मिल जाता है, उससे एक्सीड नहीं करता। प्लस ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो रेकरिंग नेचर के होते हैं। रेकरिंग का मतलब क्या है? जो आप बार बार इनकर करते हो। आप सैलरी बार बार पे करते हो, आप रेंट बार बार पे करते हो, 1-1 महीने का पे करते हो सकता है लमसम पे करो, बट ये वो एक्सपेंसेस हैं जो आपको बार बार इनकर करने ही पड़ते हैं। डन। ऑन द अदर हैंड जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं।
नॉन रेकरिंग का मतलब क्या है कि एक ही बार वो इन्वेस्टमेंट करोगे, एक ही बार वो एक्सपेंडिचर इंकर करोगे। लेट्स से आप लैंड परचेज करते हो, आप बिल्डिंग परचेज करते हो, एक साल में कई बार नहीं करते, हम लोग एक ही बार करते हैं, काफी सालों में एक बार करते हैं। सो दीज आर ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर, प्लस इनका बेनिफिट जो है वो एक साल से एक्सीड कर जाते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टर्म दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मीनिंग पढ़ने से पहले इसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर देते हैं। एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा, रेवेन्यू मीन्स योर इनकम और बेनिफिट। डेफर्ड मतलब क्या होता है? फ्यूचर। सो अब पढ़े, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिसकी रेवेन्यू, जिसका इनकम, जिसका बेनिफिट कब मिलेगा? इन द फ्यूचर, एंड दैट फ्यूचर इज नॉट स्पेसिफाइड। डन। हो सकता है आपने इस साल एक्सपेंडिचर किया, उसका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर मिले आपको। हो सकता है आपने लमसम एक्सपेंडिचर कर दिया जिसका आने वाले कई सालों तक आपको बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। अब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर में क्या होगा? आपने एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट करवा दी, एक ही बार एडवर्टाइजमेंट करवा दी और उसका बेनिफिट आपको आने वाले कई सालों तक मिल रहा है। ऑब्वियसली आप एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आने वाले सालों में भी इंकर करोगे, बट सेम एक्सपेंडिचर नहीं इंकर करोगे। So this is your deferred revenue expenditure. I hope it is clear to you all. Next term that I'm going to use over here is revenue. Revenue का मतलब क्या है? It is the monetary amount of sales. जो भी पैसे आप अपनी सेल से डिराइव करोगे, that will be your revenue. सेल्स का मतलब हमने पढ़ा कि जब आप गुड्स बेचते हो वहां से जो पैसे आते हैं वो सेल्स है, राइट? और जो पैसे आप रिसीव करोगे वहां से जनरेट करोगे, सेल्स की मॉनेटरी वैल्यू को हम बोलते हैं रेवेन्यू। डन। जो इसी से रिलेटेड टर्म है नेक्स्ट, दैट इज प्रॉफिट और लॉस। आई टेल यू फॉर्मूला ओवर हियर। प्रॉफिट कैसे डिराइव करते हैं? जब आप अपनी रेवेन्यू, अपनी इनकम में से अपना एक्सपेंडिचर, अपनी कॉस्ट डिडक्ट करते हो, दैट इज प्रॉफिट। अगर पॉजिटिव है तो प्रॉफिट, नेगेटिव है तो लॉस, राइट? अगर 10,000 की गुड्स आपने बेचे हैं और उसको आपने परचेज किया था 8,000 में, तो 2,000 का प्रॉफिट आ जाएगा, राइट? और अगर यही आपने 10,000 में जो बेचा है, इसको परचेज किया था 13,000 में, तो 3,000 का लॉस आ जाएगा। डन। प्रॉफिट का मतलब क्या है? इट इज द एक्सेस ऑफ रिटर्न ओवर कॉस्ट, एंड लॉस का मतलब क्या है? इट इज एक्सेस ऑफ कॉस्ट ओवर रेवेन्यू। लॉस का एक और मतलब होता है, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं, ये वो खर्चे होते हैं जिसकी रिटर्न आपको नहीं मिल रही है। डन। जिसकी एडिक्वेट रिटर्न आपको नहीं मिल रही। आपने 8,000 का एक्सपेंडिचर किया, उसकी एडिक्वेट रिटर्न आपको मिली 10,000, तो 2,000 का प्रॉफिट हुआ। आपने 13,000 का एक्सपेंडिचर इंकर किया, उसकी रिटर्न मिली 10,000। अब इन 13,000 में से 10,000 की रिटर्न तो मुझे आ गई है, बट उसमें से मेरा 3,000 का खर्चा ऐसा था जिसकी मुझे रिटर्न नहीं आई, तो वो मेरा लॉस हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। Next term that we are going to talk about is capital. कैपिटल एक तरह की लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए, बट होती क्या है कैपिटल? कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर। ना, जो भी इन्वेस्टमेंट ओनर करेगा या प्रोप्राइटर करेगा, दैट इज योर कैपिटल। अब वो इन्वेस्टमेंट इन कैश हो सकती है, इन काइंड हो सकती है, वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी ला सकता है, इट कैन बी एनी ऑफ दीज, बट वो ओनर वो चीज जो है वो बिजनेस में लगा रहा है, सो दैट विल बी योर कैपिटल। कैपिटल से रिलेटेड एक और टर्म हम यूज करेंगे यहाँ पे, दैट इज ड्रॉइंग्स। अब ड्राइंग्स को बताने से पहले मैं एक चीज और बताती हूँ साथ में। एक टर्म होती है ड्राइंग्स, दूसरी टर्म होती है कैपिटल विड्रॉल।
दोनों का मतलब सेम है कि उसने कैपिटल में से पैसे निकालने हैं। डिफरेंस कहाँ आता है? पर्पस में, उसके यूज में। जब ओनर पैसे निकालता है कैपिटल में से अपने पर्सनल पर्पस के लिए तो वो ड्राइंग्स है, और जब वो पैसे निकालता है बिजनेस पर्पस के लिए तो वो कैपिटल विथड्रॉन है। क्लियर? एग्जाम्पल में दे सकती हूँ, ओनर ने अपने लिए एक कार परचेज की है, उसके इंस्टॉलमेंट पे करा है अपनी कैपिटल में से, कंपनी के कैश में से, तो वो ड्राइंग्स है, उसका पर्सनल एक्सपेंस है, कार उसकी पर्सनल आइटम है। डन। बट आपने रॉ मटेरियल लिया था क्रेडिट पे, सप्लायर को पेमेंट कर रहे हो कैश में से या कैपिटल में से विड्रॉ करके। सप्लायर को क्यों पेमेंट कर रहे हैं? बिजनेस पर्पस के लिए, बिकॉज आपने रॉ मटेरियल परचेज किया था, तो दैट विल बी कैपिटल विड्रॉन, नॉट द ड्राइंग्स। आपने बिजनेस के लिए लोन लिया, वो लोन की EMIs पे कर रहे हो या लोन रीपे कर रहे हो अपना कैपिटल में से, दैट विल बी कैपिटल विड्रॉन बिकॉज वो कंपनी के लिए लिया था। I hope it is clear to you all. So these are the 20 basic terms that you need to understand before doing any other topic in accounting. These are the 20 terms that you have to memorize, you have to understand. अगर ये आपको अच्छे से समझ आ गया तो आपके लिए further जो topics, कोई भी topics है वो बहुत easy हो जाएगा. So this is done for accounting terminology. If you like this video, please give it a big thumbs up and subscribe to my channel. Also hit that bell icon so that you get notified whenever I post next video. And comment down below if you have any doubt in this topic or what other topics you want me to cover. I would love to hear it from you. Thank you so much for watching this video. I'll see you next time. Till then, goodbye and take care.